Good morning, everyone. Students, we have started chapter 10 Development from the book Political Theory of class 11th. And in the previous video, I have discussed the meaning and challenges of development with you. It means what is development and what are the ideas behind development and what challenges the people are facing for the sake of development. Development, as we all know, it means the welfare of all and improvement in the standard of living, the ideas of growth, well being, progress. I can say it's all development. And the challenges, especially India faced a lot of challenge regarding development because after independence, after 1947, India was facing so many problems like poverty, unemployment, stagnation in the agriculture, and how with the passage of time the a drastic change came, and India finally came into the stage where, at least as compared to previous years, I can say that India is much better now. And student, I discuss the social cost of development with you. Social cost means if I'm talking about the development, it should be sustainable development. And somewhere जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो development has positive as well as negative effects, and it has a negative effect that mainly for the poor or for a particular section of the society, mainly for the poor and the middle class. In the social cost of development, आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन कि कैसे डेवलपमेंट जो है सोशल कोस्ट पे हो रही है. इसका मतलब है एक एग्जाम्पल दिया था मैंने डैम्स का, इंडस्ट्रीज़ का, कि डैम्स लगाते टाइम a number of people they displaced, they lose their livelihood, there is a loss of culture also. So development ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ injustice हो जाए social cost पे. In this video we will discuss the another topic, environmental cost of development. क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था that the development has different dimensions also, social development, environmental development, political development. So the second topic is environmental cost of development. बच्चे, tsunami in 2004, it hit South and Southeast Asian coast, result in the destruction of mangroves and the building of commercial enterprises. There is also global warming, increased emission of greenhouse gases, floods and air pollution is very common. इन्वायरमेंटल कोस्ट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम नो डाउट हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, या ये कह लो बिल्डिंग्स बन रही हैं. लेकिन बच्चे, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हम इन्वायरमेंट को, हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में अनसक्सेसफुल हुए हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मेन, आई थिंक, रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट. इतनी डेवलपमेंट में हम आगे निकल गए कि हमने जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं उसी को क्या कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है. एयर पॉल्यूशन आप दे सकते हैं, ओजोन लेयर का जो होल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. इतनी सारी ग्रीन हाउसेस अफेक्ट्स हैं और उनका जो अफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका अफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, और एज अ रिजल्ट फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, सुनामीज आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट उसके लिए हम क्या क्या खोते जा रहे हैं, और एज अ रिज़ल्ट आए दिन या तो कहीं फ्लड आ जाती है या कहीं अर्थक्वेक आ जाता है. सो एयर पोल्यूशन. इसके अलावा बच्चे, the loss of forests affect the poor who uses forest resources for a variety of subsistence need like firewood, medical needs or food. Deforestation is very common. हम पेड़ काटते जा रहे हैं, loss of forest, एंड इट अफेक्ट समवेयर द पुअर. हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हमें भाई इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल देना है, इस वजह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. बट बच्चे, आपको भी पता है कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं. सबसे मेन तो ऑक्सीजन हो गया,
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं, गम हो गया, वुड हो गया, मेडिकल प्लांट्स हो गए, ये सब हमें वहाँ से मिलता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन हम किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। हम कह रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रीज़ में वुड चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए हम जो है रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें फॉरेस्ट से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो पुअर पीपल हैं या जो लोकल ट्राइब्स हैं वो तो अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली द सब्सिस्टेंस नीड में रहने के लिए जो बहुत जीने के लिए जो बहुत कंपल्सरी नीड्स होती हैं। Then falling groundwater levels, and most of the resources are non-renewable like coal, petroleum, so we need to conserve them. In class 10th also you have read about the development. आपने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और बच्चे हम इन्वायरमेंटल कोस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है नो डाउट डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन हम इन्वायरमेंट में क्या क्या हमारा लॉस हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन द अर्थ, दे आर नॉट अनलिमिटेड। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। इट मीन्स उनको रिप्लेनिश करना बहुत टफ है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, बहुत टाइम लग जाता है इनको रिन्यू करने में। सो वी हैव टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फोकस शुड बी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं बच्चे देखो, ये जो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी में ज़्यादा कवर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल, लेकिन ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में फिर भी गिवन है, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के रिसोर्सेज की बात हो रही है कहीं ना कहीं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग डेवलपमेंट। एक्सेसिंग डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट अब है क्या? इट मीन्स कि डेवलपमेंट के कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। और बच्चे डेवलपमेंट के जो मेनली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशंस हैं यूएसए हो गया, यूके हो गया, नो डाउट इन्होंने जो है डेवलपमेंट बहुत अचीव की है। और बच्चे सबसे प्लस पॉइंट है कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी की है, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा की है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि डेवलपमेंट हैज़ अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट, तो मैं यही कहूँगी कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। इंडिया में बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट हैं डेवलपमेंट के, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। इट्स all because of exchange and the ideas of growth and progress. लेकिन बच्चे still some developing countries they are facing the problems like poverty, unemployment, low rate of literacy, and as we know rich become richer day by day and the poor become poorer day by day. So when economic growth and the redistribution do not go together, the benefit are likely to be कॉर्नर्ड बाय दोज हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक कोट आ सकता है, इस पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन दे दें और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलें। कह रहे हैं व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट गेट टुगेदर, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है, पैसा है एक कंट्री में, ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। जो पैसा है एक ही कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल अगर नहीं चलेंगे देन द बेनिफिट आर लाइकली टू बी कॉर्नर्ड बाय दोज हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड। तो प्रिविलेज मतलब जो रिच है वो सिर्फ रिच ही होते जाएंगे, उसका जो बेनिफिट है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलेगा, और बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड हैं या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो डेवलपमेंट इट शुड बी लिमिटेड, it should not limited to economic growth only. The aim should be to improve the quality of life of the people. And in conclusion I can say कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड होनी चाहिए डेवलपमेंट। इट मीन्स इट शुड बी, इट्स एम शुड बी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं थ्रू रिड्यूसिंग इन पॉवर्टी, बाय गिविंग द एजुकेशन टू देम, बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू देम। ये सब अगर हो रहा है तो मैं एक्चुअल डेवलपमेंट इसे मानूंगी। और बच्चे अगर इन्वायरमेंटल कोस्ट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूँ, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो बच्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा अर्न करना, इंडिया में पैसा आ रहा है, नो,
नो उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा. वेल्थ शुड बी इक्वली, नॉट इक्वली एटलीस्ट, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी सेटिस्फाई. हर सेक्शन जो है सोसाइटी का, स्पेशली सोसाइटी में आपको पता है एक हायरार्की लेवल होता है, टॉप क्लास, मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास. तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमें सेटिस्फाई करना इज द रियल डेवलपमेंट. देन स्टूडेंट, एज वी नो, 10th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. Human Development Report, it is brought by the UNDP, United National Development Program. It ranks the country on the basis of their performance in the social indicator like poverty, education, unemployment. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती हैं जो यूएनडीपी है. मैंने आपको 10th में पढ़ाया था कि वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट देता है एंड यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट देता है. जो वर्ल्ड बैंक है इट ओनली कंसीडर पर कैपिटा इनकम एज अ इंडिकेटर टू जज कि कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है. बट यूएनडीपी इज कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, ऑल द आस्पेक्ट्स लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, IMR. सो दिस इज नॉन एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड वन आई थिंक होमवर्क इज़ फॉर यू कि आप रैंकिंग पूछेंगे इंडिया की, कि इंडिया की इस टाइम क्या रैंकिंग है. प्लीज़ गूगल कीजिए और मुझे बताइए ऑनलाइन क्लास में कि मैम ये रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. एंड देन द बेसिक नीड्स शुड बी फुलफिल. द फेमस स्लोगन लाइक गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा एंड मकान. अब बच्चे डेवलपमेंट मैंने बोल दिया कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए. इंडिविजुअल मतलब इकोनॉमिक, पैसे से रिगार्डिंग डेवलपमेंट ना सोच के हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर ग्रोथ की बात करें तो बहुत सारे स्लोगन्स हैं, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए चाहिए मेन बेसिक 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा एंड मकान. मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल होना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए हैं लाइक गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, बिजली, सड़क, पानी एंड रोटी, कपड़ा एंड मकान. It convey the sentiment that without the fulfillment of basic need, it is not possible for an individual to live a dignified life and pursue the desires. Of course, बच्चे जब हमारे पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी अगर कुछ नहीं है, हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो what kind of development we are talking about? फॉर सो मेनी ईयर्स इंडिया आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया लेकिन हमारे पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, तो किस तरह की डेवलपमेंट है ये. देन सो द इश्यू ऑफ राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी हैव बीन रेज्ड. अब बच्चे इस आपके NCERT में एक टॉपिक गिवन है राइट्स क्लेम. राइट क्लेम्स का कंक्लूजन क्या है कि नो डाउट अगर हमें लगता है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो हमारी लाइवलीहुड या जो हमें डिस्प्लेस कर देगा उस पर्टिकुलर प्लेस से, सो वी हैव टू use our rights. People have the rights to raise the voice against the injustice done for the sake of development. Injustice means एक बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ से सोचें या सामने वाली पार्टी के पॉइंट ऑफ से सोचें तो उनके लिए डेवलपमेंट है. लेकिन अगर हमें लग रहा है कि डेवलपमेंट के जस्ट एक कहते हैं ना नेम पे हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस का मतलब है कि वो तो डेवलपमेंट कर लेंगे लेकिन उसका बेनिफिट तो चलो हमें नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हमारी लाइफ पे पड़ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए. सो पीपल दे कैन यूज़ देयर राइट्स. मॉडर्न एज है, दिस इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी, and in democracy as we all know we have the rights to participate in the decision making process directly or indirectly. So at last I can say people should be consulted on those issues which affects them. All decision which affects the people shouldn't be taken at the top level. जो भी डिसीज़न लिया जाए वो हर एक के पॉइंटों से लिया जाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के डेवलपमेंट की जाए. नो, डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की डेवलपमेंट है, उससे दोनों पार्टीज़ को एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन. इफ़ वन पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड सो इट इज़ नॉट अ डेवलपमेंट. इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स I am going to discuss a very important topic. Development is not unlinear. अब ये जो अनलीनियर है ये एक टर्म है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है. वैसे तो इसके बहुत से मीनिंग होते हैं लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी द डेवलपमेंट इज़ नॉट अनलीनियर. दिस इज़ रिगार्डिंग द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट एंड आई होप
this topic is clear to you. If you have any doubt, student, you can call me. Thank you.